एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है अर्जुन बाजवा। सो अर्जुन, वेलकम टू वीरल भयानी। कैसे थैंक हो यू आप? सो मच। थैंक यू। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप सुनाइए। गुड गुड एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस। इंटरनेशनल फिल्म में आने वाले हो और कुछ टाइम में अनाउंस भी हो जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, इंटरनेशनल फिल्म जो है वो एक बहुत अलग तरह का एक ब्रेक है मेरे लिए, क्योंकि normally what happens is that you get a break in an English film, in a crossover film, but this is the first India-Taiwan collaboration, an official Taiwan-India co-production. So I'm really looking forward to it. कितनी एक्साइटमेंट है। ये लुक स्पेशली उसी के लिए है या फॉर समथिंग न्यू? नहीं नहीं, ये लुक तो किसी और फिल्म के लिए है, ओके। where they wanted me to have long hair and a beard and everything. थोड़ी ये वॉरियर किस्म की एक कैरेक्टर है, उसके लिए I had to do this look. But in my film, India Taiwan film, that's called Demon Hunters. So Demon Hunters, I have a more clean cut look. अच्छा। It's more about a guy who's living out of Taipei. He's an engineer, and how he gets into certain situations. So this look is definitely not that. सो कह सकते हैं कि जो ताइवान इंटरनेशनल मूवी है, कहीं ना कहीं रोमांटिक वाला सीन दिख सकता है, बिकॉज अगर क्लीन शेव वगैरह है तो हम वैसे अज्यूम कर सकते हैं। नहीं, यू नो व्हाट हैपेंस इज के कभी भी आप क्रॉसओवर फिल्म की बात करते हो तो हमेशा यही होता है कि लड़का यहाँ का, लड़की वहां की, या वाइस वर्सा, एक लव स्टोरी है। ये फिल्म एन एक्शन कॉमेडी है। वाओ। इट्स कंप्लीटली एक जैसे जैकी चैन की फिल्म है रश आवर, उस टाइप की स्पेस है जहां पर हॉरर एलिमेंट भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, ऑफ कोर्स एक थोड़ा बहुत रोमांटिक एंगल भी है, मगर ये उस तरह की क्रॉसओवर फिल्म नहीं है कि जहां पर लव इज अ मेन थीम. It's more of action and comedy and a comical horror situation. Yeah. So that means बहुत अमेजिंग मूवी हो सकती है, बट यू नो किस तरह से आपका ये कोलैबोरेशन हुआ, थोड़ा बहुत अगर बता दो तो। किस यू नो अगर कोलैब भी हुआ है तो कौन से आपके कैरेक्टर से वो खुद इंस्पायर हुए थे जिस वजह से आपको कॉल आया? तो मैं आपको बताऊंगा, ये फिल्म बेसिकली is being produced by or is the brainchild of two people. एक हैं लाइट हाउस प्रोडक्शंस के ओनर जो कि ताइवान से हैं, सिंडी थियल, और एक हैं गायत्री गुलियानी जो कि क्लियोज एंटरटेनमेंट की ओनर हैं, विच इज बेस्ड इन बॉम्बे. सो गायत्री जो है उन्होंने काफी बड़े बड़े स्टूडियोज पहले भी हेड किए हैं, फ्रॉम सोनी पिक्चर्स टू लायंस गेट, और वो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू में काफी ऊंचे मुकाम पर रही हैं हमेशा. So in this film, these two ladies would collaborate, wanted to collaborate, and used to meet each other for, you know, many times at Cannes, many times at other film festivals. So they had this thought, an idea, कि हम इंडिया और ताइवान को लेकर एक फिल्म जो है स्टोरी लिखी जाए. और इस फिल्म के लिए they were looking for an Indian actor, जहां पर they wanted somebody who could be comfortable with doing martial arts because there's a lot of action in that. So I've been doing taekwondo since I was in school, and I got my black belt also a long time back. So Gayatri was the one who recommended me, and we had a lot of Zoom calls with the producer director from there. And after a certain consideration, I think they thought I was worthy and I was fit enough to be playing this role. I'm sure they did the research on me completely on IMDb and other a lot of stuff they watched of mine, and that's how it came to being. What are the challenges you were facing in this action movie? Not in terms of action. I would say the only difficult thing was initially to understand Mandarin. So the film is in Mandarin Chinese. So initially it was, obviously it's an alien language for me. I don't know a word of it. I didn't know. Now I do. But initially, obviously, it's complete gibberish for you, and you're like totally lost and flabbergasted when people are talking in Chinese in front of you. Like, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? But I think the good part was that उन लोगों ने मुझे तकरीबन 15 दिन पहले, before the shoot started, they called me to Taipei. I was there for about 3 months. तो 15 दिन में आपको एक basic Chinese language का idea दिया गया. I used to have classes almost every one hour every day. और action rehearsals, training, choreographing of different types of action that they wanted to do in the film. वो सब चीजें हम लोगों ने पहले तैयारी करी. उसके बाद फिल्म की कहानी मुझे पता थी, तो I was comfortable in that. But if you ask me for the challenge, it was initially the language which was a barrier. Correct. But I think I do have a flair for languages. I pick up pretty fast. That's the reason I've done many films
इन तेलुगु, तमिल, Yes, correct. हिंदी, इंग्लिश तो चलिए आप रोज ही बोलते हैं, पंजाबी इज माय मदर टंग, Hmm. बट नाउ इट्स मैंड्रिन आल्सो दैट आई एम गेटिंग अ हैंग ऑफ इट. That's very nice ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करना जी हाँ. एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है. Yeah. और सारी लैंग्वेजेस पता चलने जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाती है कि किस अब ये है लैंग्वेज कि में थोड़ा क्या सा बात आसान हो जाए, Yes. एक्टिंग के लिए आसानी होनी चाहिए, Yes. क्योंकि अगर आपके लिए बिल्कुल नहीं नई और एलियन लैंग्वेज हो तो मुश्किल तो होती है थोड़ी सी. है. बिल्कुल बिल्कुल. बट यू नो इसी के साथ साथ आपने बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ या साउथ की मैं बात, आपके लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग फैशन एक ब्रेक थ्रू रहा है आपके करियर का. हाउ डू यू सी दैट? Well, it was a breakthrough in terms of उससे पहले I had done about 6 films in Telugu, यस. and there were a lot of good films I was a part of, a lot of big hit films I was a part of. Fashion was my third film, fourth film in Hindi, यस. but obviously it was, see, um, a breakthrough is when the film does well. करेक्ट. You can be a part of a good story, you can do whatever you want in that film. If the film doesn't do well, it doesn't get you that breakthrough. So even though I was a part of films before this, Guru was a huge film, but fashion put me on the map because obviously you were playing the leading guy opposite a huge star like Priyanka Chopra, you're singing songs, and with an accomplished national award winning director like Madhur Bhandarkar sir. So it did come as a breakthrough. It put me in the spotlight. It put me on the platform. You know, I was on the map of the film business here. Yes. So it was a good experience, and I've been pestering Madhur ji since then कि fashion 2 यार बनाओ किसी तरह से. yes. बहुत सारे लोग यू नो चाहते बहुत सारे हैं. लोग चाहते भी हैं कि Yes. fashion 2 should come. Correct. Yeah, I know. बट यू नो अगर मैं बात करूँ फैशन के थ्रू जब आपकी यू नो शूटिंग चल रही थी उस वक्त आपका और प्रियंका का यू नो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपके भी डैडी और उनके भी डैडी Yeah. का यू नो वो चल रहा Issue था. चल रहा था. यस. हाउ डू यू मैनेज यू नो शूटिंग करना और वो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना? मुश्किल होता है obviously because 2-3 months before I started shooting for that film, I had lost my dad. So you're not even in a great state of mind to even think straight. शूट करना तो बहुत मुश्किल और बहुत फार फेच्ड एक यू नो चीज होती है. और प्रियंका's father was also going through Cancer. in ailment, Yes. कैंसर था उनको. तो कई बार ऐसा होता था कि हम दोनों बैठकर अपनी अपनी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस कर रहे होते थे. लोगों को लगता था शायद दो को एक्टर्स बैठे हैं, हाँ. पता नहीं कोई सीन डिस्कस कर रहे हैं या क्या मजाक की बातें कर रहे हैं. बट it used to be such that I would tell her my side of the story and listen to hers also, and I think we did bond on that, even though her father was there. तो उनसे मेरी मुलाकात भी होती थी. मैं उनसे बहुत प्यार करते थे मुझे, और कई बार बोल देते थे मेरा फेवरेट हीरो है ये. तो एक उनकी ब्लेसिंग्स भी थी. आई थिंक मेरे फादर्स की ब्लेसिंग्स, उनकी ब्लेसिंग्स के that film did really well, and mine, and even though Priyanka was such a huge star and I was fairly new, we happened to be you know in that film, and the chemistry really worked, and it was appreciated and liked by people so much. करेक्ट. राइट. और सीरियसली आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी और फिल्म भी बहुत अच्छी गई थी. इनफैक्ट मेरी फेवरेट फिल्म थी टू बी वेरी फ्रैंक. बट यू नो अगर मैं बात करूँ उसी ये जो आप लोगों का फैमिली इशू था, जो फादर इलनेस और यू नो आपके फादर की वजह से, यही वजह थी यू नो आप दोनों को एक साथ लाना, और यू नो कह सकते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड वही चीज से बना. I don't know, you know, if I look in retrospect, ये साथ लाना इस तरह से नहीं कहूंगा, बिकॉज जब मैंने फिल्म साइन किया शायद उनको तब तो ये बात पता नहीं थी. हाँ, बिल्कुल ठीक है, मगर ये है कि मैं एक ब्लेसिंग्स बोल सकता हूँ मेरे फादर की, कि उनके जाने के 2-3 महीने के बाद, जब मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं था कि मुझे फिल्में करनी है या नहीं करनी है, आई गॉट अ ब्रेक लाइक दैट. और डेफिनेटली एक यू नो अब जब आप इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो बहुत मुश्किल होती हैं, एग्जैक्टली. तो आप किसी दूसरे की तकलीफ को अगर देखते हैं तो शायद थोड़ा सा आपको रियलाइज होता है कि यार मैं अकेला ही नहीं हूँ. यस. एंड इस चीज को मैं आई वुड लाइक टू बिलीव इट दैट शी आल्सो अंडरस्टूड वेयर आई कम फ्रॉम, एंड आई कुड अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट शी इज फीलिंग.
करेक्ट, and maybe that camaraderie also worked. यस, Yeah. वेल अब तो वो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है, बिल्कुल। क्या कहना है, कभी बातचीत होती है उनके साथ, प्रियंका देखिए, के साथ? whatever she is today, wherever she is reached, I can fairly say that it's all because of own hard work, her focus, her determination. Because she is an extremely hardworking, extremely talented girl. और अब तो उन्होंने she's so popular on a global stage, Yes. and I'm really proud of what she's achieved. I'm really proud, and I hope and I pray that since I am going to get a breakthrough now in the international cinema, that maybe our paths cross again in some film. बट यू नो स्टिल बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं कर पाता अभी भी। प्रियंका चोपड़ा जब हॉलीवुड में गई, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बॉलीवुड कि यार प्रियंका उस लेवल पे चली गई। कुछ लोग हैं जिसने यू नो टिप्पणी की थी इस चीजों पर, आपको क्या कहना है इस चीज के नहीं, बारे मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ यार, मतलब इसमें टिप्पणी करने वाला कोई विषय ही नहीं है किसी तरह का। अगर किसी की अचीवमेंट है, किसी को एक इंटरनेशनल स्टेज पे एक्कोलेड्स मिल रहे हैं, तो हमें तो खुश होना चाहिए उस चीज से, और हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए कि somebody from our side only has gone and created such a big name and platform for herself. Correct, So I'm really proud of it. वेल मैं हार्ड वर्किंग की अगर बात करूँ, नॉट ओनली प्रियंका, आप भी बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं, आपने इतनी सारी मूवीज की है, बड़ी बड़ी मूवीज भी की है, बट यू नो कुछ मूवीज है बड़ी बड़े लोगों के साथ आपने की है जो चल नहीं सकी। व्हाट वुड बी द रीजन? जो See- एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। It happens. It's a part of the business. ऐसा नहीं कि हर बड़ी चीज जो है या बड़े सेटअप की फिल्में हैं वो चले। कहानी अच्छी कभी कभी लोगों को नहीं लगती, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूं कि एवरीथिंग इज एन ऑडियंस डिसीजन। करेक्ट, ऑडियंस को जो कहानी अच्छी लगती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, ये उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। आप हमेशा ये सोचकर फिल्म बनाते हैं, एवरीबडी मेक्स अ फिल्म, उनका थॉट यही होता है कि फिल्म चलेगी, यस, इसीलिए तो बनाई जाती है, बिल्कुल, मगर अल्टीमेटली ऑडियंस का डिसीजन है। करेक्ट, तो इस चीज को हमें बुरा ना मानते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कमी पेशी इस फिल्म में रह गई शायद आगे ना करें, और उससे सीख लेनी चाहिए। और मुझे लगता है हर आदमी जो फिल्म मेकिंग से इन्वॉल्व है, वो उसका प्रोसेस यही रहता है कि मतलब whatever we couldn't do in the last film, if it didn't get accepted by the audience, let's try and do better next time. बेटर की अगर बात की जाए, सो व्हाट्स बेटर, यू नो आजकल ऑडियंस को रिक्रिएशन वाली चीजें शायद से ज्यादा नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी चीजें रिक्रिएट की जा रही है बॉलीवुड में। माइट बी वो रीजन हो सकता है एक्सेप्ट नहीं करना। Nowadays, if you ask me, in our industry, the dynamics have changed of casting. That is one big reason people don't want to see films. अब ये लोग कुछ इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, रीजन यही है कि people don't want to see, let me put it this way. When we were kids and we watched films, या किसी ने भी फिल्में देखी हैं, उसमें आपने एस्पिरेशनल वैल्यू या इंस्पिरेशनल वैल्यू ढूंढी है अपने हीरोज में, अपने कैरेक्टर्स में, स्टोरीज में। Now when you've taken out the aspiration and inspirational value of your lead actor, when you have just made him a boy next door, when your story is so ordinary that you see it happening every day nearby you, why would you want to amplify and watch it on screen? करेक्ट, राइट, राइट, You know, you want to watch something where you can get some kind of inspiration from what you're watching, एग्जैक्टली, in terms of, I mean, putting it simply, like example wise, you want to look like somebody you watch on screen, you want to have hair like them, you want to have a body like them, you want to ape them in many different ways of their physical attributes, you know. यस, एग्जैक्टली, And when you don't see that on screen, when you think I'm better than him, then why would you want go and watch films? एग्जैक्टली, You know. So I think the dynamics of have changed, because that's what we are serving nowadays to people. They are not finding anything inspirational or aspirational on the people that they see on screen in the garb of regular, everyday, mundane, next door stories. That's one big reason, and it needs to change. एग्जैक्टली। अभी यू नो कास्ट की अगर मैं बात ही करूं, मुझे ऐसे लगता है, यू नो, या
वो लोगों को भी लगता है, नॉट ओनली मी, ऑडियंस को भी लगता है कि क्राफ्ट नहीं देखा जाता है। अब तो नेपोटिज्म का जमाना आ गया। डू यू फील दैट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, नेपो किड्स के ऊपर भी एक और एक चीज है कि वो अपने क्राफ्ट में इतने शार्प नहीं है जितने एक्टर्स पहले थे। डू यू फील दिस आल्सो, दिस मे बी द रीजन? It's not about nepotism or not nepotism. It's about your own will to learn the craft and excel at it. You're absolutely right. People are not paying attention. For them, acting is the least important thing. For them, learning to be in front of the camera is the least important thing. Nowadays, it's all about publicity. It's all about PR. It's all about being seen at the right places, being seen in the parties, wearing the right clothes. That has become the norm of being a star. You're not paying attention to your language. आपको मतलब आज की डेट में अगर मैं कई बार नोट करता हूँ, अगर मुझे कोई बोलता है यार किसी फिल्म की स्क्रिप्ट दे रहे हैं आपको, तो मैं बोलता हूँ यार हिंदी में दे दो। तो बड़ा शॉकिंगली आपसे पूछे यू वांट टू रीड इन हिंदी? अच्छा, अरे भाई हिंदी फिल्म है तो हिंदी में पढ़ूंगा ना यार, करेक्ट, मुझे आसानी होगी पढ़ने में। जब आप सारी की सारी चीजें जो है अपनी वहां से उठा के किसी और जोन में लेके जा रहे हैं, जब आप सीन को पढ़ के समझ के उसके नुआंसेस जान के डायरेक्टर की जान खा लेते थे आप कि मुझे बताइए ये कैसे करना, राइट, उतनी भूख नहीं है। हाँ, राइट, being a star has become more important than being an actor. Getting stardom, getting fame has taken over. So I feel nowadays people are just about getting famous. Nobody is talking about being a good actor. Nobody is talking about, getting into the skin of the characters. Nobody is talking about creating different looks. Nobody is talking about whether I'm reading the script over and over again and making notes as to what I'm going to do in it. एग्जैक्टली, You are not maneuvering yourself in those things. You are just looking at how do I become famous. So when you just want to get famous, and the films are also that criteria, like you said, social media. Everything is about social media nowadays. You're getting cast because you've got social media numbers. yes, And that's not a benchmark to be an actor. It's a very difficult job. It's a very tough, it's a very professional, tough, tedious job to be an actor. It's not just about being in front of the camera and being famous. एग्जैक्टली, And that's where we are lacking nowadays. बड़ी सिंपल सी बात होती है, जब आप बात करते हैं तो आप नुक्ते लगाते हैं। पूछिए किसी को नुक्ते का मतलब मालूम हो तो। हाँ, राइट, पहले आपकी भाषा के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता था, पहले हमेशा ये बोला जाता था इसकी जबान बड़ी साफ है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, यस, आपकी लिखाई जो होती थी वो फिल्म स्क्रिप्ट के हिसाब से होती थी। करेक्ट, अगर आप nowadays if you see the dialogues in the films are the dialogues or the way you speak to your friends on the phone or the way you are just conversing amongst your circles. तो उसमें मैं क्या अलग स्क्रीन पे जाके देख रहा हूँ, फिर आदमी कहता है यार ये तो रोज ही होता है हमारे आसपास, इसको स्क्रीन पे क्या देखो। करेक्ट, राइट, जब उतना हार्ड वर्क आप नहीं करेंगे then how will people aspire or find something inspirational in you? करेक्ट, राइट, राइट, And I do feel that obviously it's just become right now the norm is famous कैसे होना, यस, एक्टिंग कैसे करनी है, क्या सीन में किस तरह से पढ़ाई करनी है उसकी, या उसके आपको जिसको बोलते हैं सर फेंक के उसके अंदर घुस जाना है, बहुत कम हो रहा है। बहुत कम हो रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी की फिल्म्स, अभी लोग ये जनरेशन के भी वो 90s के ही कैरेक्टर्स देखना पसंद करते हैं, वही 90s के ही एक्टर्स को देखना पसंद करते हैं। स्टिल अभी जैकी श्रॉफ अभी भी अगर आ जाए वो उनको ही देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और क्योंकि उन्होंने वो जो मुकाम था वो हासिल किया अपने टैलेंट के बेस पर। आज भी अगर आप देखें तो मतलब यार फिल्में क्या होती हैं, फिल्में होती हैं कि आप, मैं एक्टिंग से बात करता हूँ, व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग इज बीइंग रियल इन एन अनरियल सिचुएशन। आप इतना कन्विंसिंग अपने आप को कर लेते हैं कि आप एक अनरियल सिचुएशन है जो कि एक शूट का माहौल है, उसके अंदर आप अपने आप को इतना कन्विंसिंग बना लेते हैं कि सामने वाला देखने वाला जो है ही बिलीव्स यू आर व्हाट यू आर ऑन स्क्रीन। करेक्ट, उसके बाद फिल्में ये होती हैं कि वो एक डिफरेंट वर्ल्ड होता है। आप थिएटर में जाते हैं, लाइटें बंद होती हैं, आप जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप उस दुनिया में खो जाते हैं। तो जितने भी हमारे 90s के एक्टर्स हैं या उससे पहले हैं या अभी, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उस तरह के, अभी बहुत सारे अच्छे हमारे एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं
जो उतनी मेहनत करती हैं, यस यस उन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी उस शिद्दत से उस तरह की चीजें बनाई हैं, करेक्ट उस तरह के कैरेक्टर्स, उस तरह के लुक्स जो आइकॉनिक बन गए, बिल्कुल जिनको आप वो जो बंद कमरे में बिना लाइट के एक स्क्रीन पर देख कर आए, आपके दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ गए करेक्ट कि आप उसको एप करना शुरू कर देते हैं अपनी जिंदगी में, बिल्कुल आप वो डायलॉग्स बोलना शुरू कर देते हैं अपनी जिंदगी में। करेक्ट तो ऑब्वियसली जब वो अब नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए कि आज की डेट में अगर कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं, आप उनकी आवाज भी नहीं पहचान सकते, करेक्ट राइट आप उनके किसी डायलॉग को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल नहीं पहले क्या होता था, आप किसी शो पर जाते थे या किसी कॉमेडी शो पर जाते थे तो वो लोग पुरानी फिल्मों के कैरेक्टर्स की, उनके डायलॉग्स की उस चीज को मिमिक्री करके बताते थे। यस कैन यू फाइंड समबडी टुडे हुज मिमिक्री यू कैन डू? That's it? हम पहले के तो एक्टर्स के डुप्लीकेट्स भी देखते थे, अब तो डुप्लीकेट्स भी नहीं नहीं चलिए ठीक है, वो एक देखिए वो अलग बात है, वो आप जब बहुत फेमस हो जाते हैं तो Yes. कोई ना कोई चार लोग आपके जैसे जो दिखने वाले होते हैं, तो मतलब वो एक स्टारडम का क्रेज होता है, Yes, सबको होता बिल्कुल है। मगर वही बात है कि एस्पिरेशनल वाली बात कर रहा हूं कि आज की डेट में अगर आप बड़े स्टार्स के डुप्लीकेट्स को देखते हैं, दोज गाइज एस्पायर टू बी लुकिंग लाइक देम, यस है ना? हाँ हमने वो चीज निकाल दी है। yeah, हम रेगुलर एक जो इंसान है उसको स्क्रीन पर डाल रहे हैं, तो आम आदमी बोलता है यार मैं तो ऐसा दिखता ही हूं, मैं क्यों दोबारा बनने की कोशिश करूं? correct राइट राइट ये फर्क है ना। वेल ये तो है ही, बट यू नो आपने कबीर सिंह किया था, जी क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया गया उस मूवी को, बट पसंद भी किया गया, लोगों ने देखा भी, हिट भी गई थी वो मूवी, नॉट बैड, बट उस किरदार में आपको आना, बड़े भाई का जो किरदार आपने किया था, कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा था? नहीं, मैं वैसे ही हूँ निजी जिंदगी में भी। आई एम द स्ट्रिक्ट ओल्डर ब्रदर इन रियल लाइफ। हाँ हाँ मैं यहाँ से शुरू करूंगा, जिन लोगों को पसंद नहीं आए, जिन्होंने उसकी बुराई की, नो प्रॉब्लम, इज देयर ओपिनियन। द फिल्म इज अ ह्यूज हिट, इट इज वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ। It's a huge successful film with great music. यस It has a brilliant intense love story. अब उसमें आपको अगर कुछ चीजें इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल लगी हैं, that means you were looking only for that. करेक्ट राइट Why not looking for the whole film? Why you're not looking at the intensity of the love story in that film? Why aren't you looking at the beautiful music in that film? Why aren't you looking at two people who separate in such adverse ways getting back together, longing for each other's love? I think that's what you want to see, right? करेक्ट आप चाहते हैं कि हर चीज जो है वो एक रोजी पिक्चर पे एंड हो, आप चाहते हैं आपके हीरो हीरोइन मिले आपस में, तो उसमें वो हुआ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, जिसको जो समझ में आया उसने वहां से ले लिया। मगर ये फिल्म उस टाइम पर मुझे तो खैर थोड़ा सा ऐसा लगा था, क्योंकि मैंने संदीप को बोला, मैंने कहा यार मुझे भाई भाई का रोल नहीं करता है। सो देन ही टोल्ड मी, सेज यू वॉच द फिल्म एंड यू प्ले इट द वे यू वांट टू। क्योंकि जो मैंने अर्जुन रेड्डी फिल्म देखी थी, उसमें द ओल्डर ब्रदर वाज अ मोर डोसाइल, मोर काम पर्सन। तो मैंने कहा यार मैं डोसाइल तो लाइफ में हूं नहीं, ना ही थोड़ा काम टाइप का हूं, मगर ये है कि टिपिकल पंजाबी older brother type to hum. So then Sandeep said, you play it the way you want to. And he was kind enough, because I didn't want to be in that space, so he was kind enough to give me a special appearance credit only for that. I said I would want that only, because I don't want to be in that situation, you know. It was not challenging at all. It was very easy breezy to play that part because of two reasons. एक तो Sandeep's direction, he was very easy. He guided us right. And secondly, I think what I shared with Shahid, the camaraderie we have on screen is exactly the same way we were off screen. I mean, we spoke like friends. We had a great time. We had a great laugh, and we would discuss a lot of things. And that showed on screen. The chemistry between two brothers was very evident on screen. यस यस, बट यू नो संदीप सर की अगर मैं बात ही करूं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, और इनफैक्ट आज भी वो चर्चा में ही है, दीपिका को लेकर हो या यू नो करीना को लेकर हो। क्या कहना चाहोगे, वो फ्लॉस किधर आ जाता है? इसको फ्लॉ नहीं कह सकते। देखिए, there are two individuals who are extremely accomplished people in their own, in their own way, professionally. जरूरी नहीं है कि two very accomplished people will be on the same page creatively.
So I guess whatever is the equation or whatever on whatever terms this equation didn't fall into place of Deepika being a part of that film, that's I would leave it entirely up to both those people. Let's not create any masala out of it and start taking sides. Correct. You know, both of them are very professional. Both of them have done such great work. Both of them are celebrated in their own way in the film business, and is very lucky to be part of this business. And they have achieved such great heights, both of them. So I would like to just put it to rest and not kind of create any entertainment for people to talk about. You know. बट यू नो बहुत सारी एक्ट्रेसेस है जो संदीप सर के साथ काम नहीं करना चाहती है जस्ट बिकॉज के इनिशियल डेज में वो अगर साइन करवाते हैं फिर बैकआउट करते हैं और फिर किसी और को चूज करते हैं. नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सुना, ऐसा कभी भी नहीं. I don't think this is true. Okay. I would not like to believe it because I know he's very, very focused on his work. He's very focused on what he wants to do on his filmmaking. तो ये तो मुझे बिल्कुल ही नई बात सुनने को मिल रही है. ऐसा कुछ नहीं है. Okay. Well, lastly, you know, जाते जाते क्या कहना चाहोगे about your, you know, character और किस तरह का कैरेक्टर है जो यू नो आपको अभी भी प्ले करना है, जो आपके बकेट लिस्ट में है, जो अभी तक आप प्ले नहीं किया है. Two types of characters actually. अगर आप उसको हिंदी में फिल्म के हिसाब से देखेंगे तो शायद विकी कौशल की ही 2 फिल्में हैं. उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मैंने 3 फिल्में इनफैक्ट उनकी. एक तो मैंने उनकी फिल्म देखी थी उरी. ओके. उस तरह का रोल मैंने हालांकि किया है स्टेट ऑफ सीज 2611 जो हमारी सीरीज है Z5 पे, उसमें वेयर आई प्लेड कर्नल सुनील शेरॉन जो कमांडिंग ऑफिसर थे ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो के जब मुंबई अटैक्स हुए थे. उरी जैसी फिल्म आई वुड लव टू डू डेफिनेटली. सेकेंडली द वे ही प्लेड द कैरेक्टर ऑफ सरदार उधम जो मैंने देखी थी फिल्म, और उस टाइम पर we used to work out in the same gym. तो उन्होंने काफी वजन लूज किया होता, तो मैंने एक दिन उनको पूछा भी, मैं कि यार वजन क्यों काट किया ना. तो he says I have to look 19 यार. ओके. तो मैं 19 साल था क्यों. He told me about the film. I think he was brilliant in that. He was absolutely brilliant in that scene of Jallianwala Bagh massacre. He was outstanding. I messaged him also after that. And then of course there's a war film, war in the sense like if you talk about historical, which is Chava. So these are the kind of films, even though there are other films also, I would love to play, I would love to do a gangster, intense, hardcore gangster drama, which I look forward to, and a historical warrior. These are the kind of things I want to do. और किस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के अंदर जो मुझे काम दे दे इस फिल्म में. But anyone in bucket list? Everybody. Why one? My bucket is very big, so there are a lot of people. There are a lot of people I would want to work with. You, as an actor, you're greedy, right? You don't want to limit yourself कि मुझे यही करना है, यही करना है. जो अच्छा काम मिले बिल्कुल करना चाहिए. Well, 2 सवाल आपके यू नो जवाब से आते हैं. एक तो आपने जैसे कहा कि उरी जैसी फिल्म या उस जैसा कैरेक्टर आपको प्ले करना है, बट रिसेंटली वॉट एवर हैपन यू नो पहलगाम में बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सेलेब्स को यू नो सपोर्ट करना चाहिए था, सोल्जर्स को, आर्मी को उस वक्त अप्रिशिएट करना चाहिए था, जब किसी ने भी नहीं किया. बट उनको अगर इस तरह के किरदार मिलते हैं तो वो प्ले करते हैं और उस वक्त उनको नेशन की याद आती है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I can't say for anybody else, but आप मेरा Instagram उठा के देख लीजिए. From the very first day, even though there were a lot of rude messages which you got, some mocking messages you got, I didn't care. I'm with my country, I'm with my forces. मैंने same day जिस दिन start हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसी दिन I put the post, I spoke to a lot of people, I put everything that I could on social media. You have to be supportive of your forces, your country, irrespective. Correct. ऐसी सिचुएशन छोड़िए आप. जब तक आप अपने देश के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर आपका वजूद क्या रह जाता है. Exactly, right. तो इसलिए मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ, बाकी मैं किसी की तरफ से Ready. Yes.
बाकी मैं किसी की पॉइंट ऑफ व्यू को मैं जज नहीं कर सकता हूँ. अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ कि आई डिड, आई विल कीप डूइंग इट, आई स्टिल डू इट. बट यही वक्त होता है ना अप्रिसिएशन बिल्कुल, का बिल्कुल, और मोटिवेट करने का. जी हाँ, बिल्कुल. और करना भी चाहिए. बिल्कुल. जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, आपके क्या पोजीशन है, सिचुएशन है, रिसोर्सेज हैं, आपको साथ खड़े होना पड़ेगा. अभी एक सोशल मीडिया ही एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके थ्रू हम बहुत इजीली सबसे कनेक्ट हो सकते हैं. एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली. उसी का फायदा अगर हम ना उठाए और अच्छी चीज के लिए ना उठाए, सो क्या ही फायदा सोशल मीडिया का और उस फैन फॉलोइंग का. डोंट यू थिंक दिस? You said the answer yourself. Absolutely. उसका फायदा ना उठाएं, लोगों तक अपने थॉट्स ना पहुंचाएं. Exactly. और लोगों को ये ना बताएं कि हम पेट्रियोटिक नेशनलिस्टिक थॉट प्रोसेस वाले हैं. Correct. See, you can have any political leadings to any party or whatever it is. When it comes a time like this, you have to stand with your country. Yes, exactly. That's where you belong. That's your identity. Correct. You have to do it. It's your duty. बिल्कुल. जितनी ड्यूटी एक फौजी की है बॉर्डर पे खड़े होकर आपको सिक्योर रखना, उतनी ही आपकी ड्यूटी है उनकी उस सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट करना. Exactly. तो बिल्कुल करना चाहिए. जो नहीं कर रहे हैं उस चीज को मैं ठीक नहीं मानूंगा. बिल्कुल राइट. वेल, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके सवाल से ये था, 19 ईयर ओल्ड का जो वो किरदार निभा रहे थे, वो अपने आप को जिस तरह से मेंटेन रख रहे थे, विक्की कौशल, और जिस तरह से फिट एंड फाइन. आई वांट टू टॉक अबाउट योर फिटनेस. आपने अब तक का अपने आप को इतना फिट रखा है. व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? I think it's your lifestyle, it's your mental state. Yeah, you are as fit as you think you are in your mind. तो मतलब शुरू से my father was an athlete in his college days. He was a decathlon. I mean, sense, he used to be more into heavy sports like javelin throw, hammer throw, discus throw. तो मैं तो बहुत पतला होता था स्कूल टाइम में, और मेरी मतलब पतली सी कमर और ढीली सी पैंट, और बड़ी शर्म आती थी. वो भी मुझे बहुत इस बात पे टॉन्ट करते कि यार ये क्या तुमने अपना हाल बनाया हुआ है. तो थोड़ा सा उस टाइम से माइंडसेट ये हो गया कि यार physically you need to look fit. So it's always been a lifestyle choice. It's not because of a professional choice that you want to keep yourself fit. This is how I've been, this is how I am, this is how I'm going to remain, because there's no other way. I look at myself, I can look at myself. I mean, it has to be right. You can't let go. You can't let go ever. But while I say that, I do maintain a certain regime of working out, my martial arts, everything. I'm not much of a drinker. I'm a teetotaler, social drinking. So that really helps, right? Right. It does help. मतलब वो उतनी social drinking थोड़ी बहुत आप करते हैं. खाने पे कंट्रोल है थोड़ा सा. हाँ, खाने में. Even though I'm a complete foodie. Yes, exactly. A big proper Punjabi foodie. Yes. मगर ये है कि थोड़ा सा खाने पीने पे मेरा शुरू से ही कंट्रोल है. पीपल टेल मी, वो कैसे यार नकली पंजाबी, ना दारू पीना, ना तू खाना ज्यादा. तो मैं कह यार वो चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में है. शुरू से ही है. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एफर्ट डाला हुआ है पर्पसली, बट शुरू से है वैसा. वेल, फैशन के बाद कह सकते हैं गर्ल फैंडम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि दैट टाइम तो मतलब यू वर अमेजिंग. और वो मूवी में भी हाँ हुआ था. So any crazy moment? A lot of them, yeah. छोड़ो, कैमरे पे अच्छा नहीं लगता क्या तो. एक crazy moment. नहीं, मतलब वो तो देखिए क्या होता है. ठीक है यार, मेरा क्या था उसमें. पिक्चर अच्छी थी, लोगों को अच्छी लगी. No, but your look was awesome. हाँ, वो लुक चलिए ठीक है, लोगों को अच्छी लगी, गाना अच्छा था. That's what you work for, ना? You want women to fall for you, women to like you, and that's why, I mean, that's the accomplishment of a hit film. A good musical, a good song that you get. तो होता था उस टाइम पे काफी, मतलब मैसेजेस भी आते थे, थोड़े से अजीब से गलत मैसेजेस भी आते थे. आज भी आते हैं. Okay. मगर ठीक है, you take it in the stride, and that's what you get. Correct, right. Yeah, that's what you work for. I mean, on a serious note, if I would say, if nobody asked you, or nobody questioned you, or nobody sent you a message, nobody said कि यार I like you, I love you, I want this, I want that, then आप ही शीशे से पूछोगे भैया हुआ क्या, मुझे बताओ. कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा है. मगर ठीक है,
I feel lucky and blessed that you have people appreciating you, loving you, giving you all the respect, love, appreciation for your work. You know, करेक्ट, राइट, that's what an actor wants. एग्जैक्टली, Yeah. राइट। वेल, लास्टली जाते जाते जानना चाहूंगी, अभी तक का आप सिंगल हो, Hmm. कुछ आगे सोचा है रिलेशनशिप का या गेटिंग मैरिड? बहुत कुछ सोचा है. I've had my share of relationships, being in love, falling out of love. I've had all of that. Yeah, now, of course, वो तो है ही दिमाग में यार. अकेले थोड़ा रहना है. सो जल्दी 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 देख सकते हैं हम? Let's hope so. झट मंगनी पट ब्याह, ब्याह। जैसे ही लड़की मिले तो. अभी तक लड़की नहीं मिली है मतलब। दैट्स Yeah. इम्पॉसिबल। Yeah. वेल, लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? फैंस एंड व्यूअर्स को मैं क्या कह सकता हूँ यार, वो ही कहते रहते हैं मुझे. और आपका जो द लव एंड अप्रिसिएशन आई गेट फ्रॉम एवरीबॉडी, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आई गेट ऑन फ्रॉम पीपल, दैट दे वांट टू सी यू मोर, दे लाइक योर वर्क, दे appreciate what you've done. I think that's the biggest reward and an award an actor can get. That's what you work for, and I hope I can stay this relevant. I can stay worthy of your love and affection till the time I can work in the movies, and I hope even for the film people, जब तक फिल्म वाले मुझे काम देते रहेंगे मैं करता रहूंगा और आपको खुश करता रहूंगा. That's all. Thank you.